Hello student, today I am teaching you social science for class 8 and our topic is failure of the Cripps mission. So this is the topic in your history chapter, that is the Indian struggle, freedom fighter, the struggle for India's freedom. Okay, so this was last topic left. So listen carefully. So as I already covered many topics which we have in this chapter. These are the revolutionary movement, Simon Commission 1927, Lahore Session 1929, Civil Disobedience Movement 1930-34, Round Table Conference, Government of India Act of 1935, Indian National Movement during the Second World War 1939-1945. Now failure of the Cripps mission. To secure the cooperation of the Indian in the war and to get the resource and manpower from India to fight the war, the British sent in March 1942 a mission headed by a cabinet minister, Sir Stafford Cripps. Okay, तो ये हमारा जो क्रिप्स मिशन था ये फेल हो गया था, ठीक है, क्योंकि इससे पहले क्या हुआ था, रेजिग्नेशंस ऑफ कांग्रेस मिनिस्टर्स, रिज़ाइन कर दिया था कांग्रेस के मिनिस्टर्स ने, ठीक है, वो इसलिए रिज़ाइन किया था क्योंकि when the first world war broke out in September 1939, Congress was ready to give support to the British in the war, but in return they wanted India to be granted independence after the war. Okay, तो इंडिया चाहती थी, ये जो इंडिया के जो कांग्रेस लीडर थे वो चाहते थे कि ये हमें इंडिपेंडेंट कर दे आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, बट ब्रिटिश रिफ्यूज टू ग्रांट दिस डिमांड, बट ब्रिटिशर्स ने इस डिमांड को फुलफिल करने से मना कर दिया. द कांग्रेस मिनिस्टर्स देयरफॉर रिजाइन इन प्रोटेस्ट. अब इस उन्होंने माना ही नहीं उनकी बात, तो इस वजह से जो कांग्रेस के लीडर्स थे दे गिवन देयर रिजाइन टू द from their post. Okay, so the failure of the Cripps mission. Now to secure the cooperation of the Indian in the war, तो जो हमने इंडियन ने जो कॉपरेट किया था ब्रिटिशर्स को, ठीक है, एंड टू गेट द रिसोर्स एंड द मैन पावर फ्रॉम इंडिया, और इंडिया के द्वारा रिसोर्स प्रोवाइड किया गया था, मैन पावर रिसोर्स प्रोवाइड किया गया था टू फाइट द वॉर. द ब्रिटिश सेंट मार्च 1942 अ मिशन हेडेड बाय अ कैबिनेट मिनिस्टर. एक कैबिनेट मिनिस्टर उन्होंने सेंड किए जो थे सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, बट द नेगोटिएशंस failed because the Indian leaders were not satisfied with the vague promises to increase the number of Indian members in the Viceroy Executive Council. अब जो इंडियन लीडर्स थे वो चाहते थे कि वाइजरी एग्जीक्यूटिव काउंसिल्स के अंदर भी इंडियन मेंबर्स को ज़्यादा रखा जाए, लेकिन ऐसा उन्होंने नहीं किया. तो इस वजह से जो इंडिया के जो लीडर्स थे वो अनसेटिस्फाइड थे. British government refused to accept the Congress demand from the immediate transfer of effective power to Indians. और जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उन्होंने बिल्कुल रिफ्यूज़ कर दिया था कि वो इंडियन जो लीडर्स हैं उनको इफेक्टिवली पावर प्रोवाइड नहीं कर सकते. Then next, quit India movement 1942. So after the failure of the Cripps mission, Congress decided to further pressurize the British to accept their demand for independence. अब क्रिप्स मिशन के बाद कांग्रेस ने ये डिसाइड किया कि ब्रिटिशर्स के ऊपर इंडिपेंडेंट गेट करने के लिए डिमांड प्रेजेंट करे. On 8th of August 1942, the Congress under the leadership of Gandhi ji passed the Quit India resolution demanding an immediate end of British rule in India. Then
8 अगस्त 1942 में गांधी जी ने क्विट इंडिया रिसोल्यूशन दिया और इन्होंने डिमांड करी कि हमें हमारा इंडिया वापस चाहिए, वी नॉट नीड ब्रिटिश रूल एट ऑल इन इंडिया. But in the morning of 9th of August, Gandhi ji and all other Congress leaders were arrested and Congress was declared illegal. अब नेक्स्ट डे 9th of August में जितने भी कांग्रेस के लीडर्स थे उनको अरेस्ट कर लिया गया और उन सबको इलीगल डिक्लेयर कर दिया गया. बट द मूवमेंट कुड नॉट बी क्रश्ड. बट जो मूवमेंट था वो रुका नहीं. ओके, ऑल ओवर द कंट्री देयर वर हड़ताल, स्ट्राइक्स एंड डिमॉन्स्ट्रेशंस. अब हर जगह लोगों ने हड़ताल करी, स्ट्राइक्स करी, दंगे करे, डिमॉन्स्ट्रेशन किया. द पीपल अटैक द पुलिस स्टेशन, पोस्ट ऑफिस, रेलवे स्टेशन एक्सेट्रा. एंड पीपल स्टार्ट showing their agitations and their anger towards the British government. They attack the police station, post office, railway stations, etc. So in many places parallel governments were set up. तो बहुत सी जगह पर पैरेलल गवर्नमेंट सेट कर दी गई. मीन्स हाफ ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड हाफ ऑफ द इंडियन लीडर्स गवर्नमेंट. सो द ब्रिटिश ट्राई टू क्रश द मूवमेंट वेरी हार्शली. अब ब्रिटिशर्स चाहते थे कि जो मूवमेंट चल रहा है इंडियन पीपल्स के द्वारा फॉर गेटिंग देयर इंडिपेंडेंस उसको बिल्कुल ख़त्म कर दिया जाए. गांधी जी said on 8th of August, I therefore want freedom immediately this very night before dawn. If it can be had, I am not going to be satisfied with anything short of complete freedom. Here is a mantra, a short one that I give you. The mantra is do or die. We shall either free India or die in the attempt. So Gandhi ji has given his views in front of the people and he given one of the mantra, डू और डाई. इन्होंने मंत्रा भी दिया अपना कि या तो आप जियो, या तो आप करो, या आप मरो. ओके, सो सच टाइप ऑफ स्लोगन्स एंड सच टाइप्स ऑफ एगिटेशन स्पीचेस many of the Indian nationalist leaders has given to the people for provoking them for their freedom. Then Indian National Army, INA, and Subhash Chandra Bose. So Subhash Chandra Bose, one of the most powerful nationalist leader, escaped from India during this period to organize an armed struggle against the British rule. He formed the Azad Hind Fauj, Indian National Army, in Singapore to launch a military campaign for the liberation of India. अब जो सुभाष चंद्र बोस थे इन्होंने इंडियन नेशनल आर्मी को बनाया, ठीक है, एंड जिसको स्टार्टिंग में आज़ाद हिंद फौज का नाम दिया गया, ठीक है, एंड ही लॉन्च हिज आर्मी इन सिंगापुर. It is one of the military campaign for the liberation of India. Why they meant that particular military campaign? For liberation, ताकि इंडिया को लिबर्टी मिल सके, आज़ादी मिल सके. Then Subhash Chandra Bose inspired the people with his powerful word, give me blood and I shall give you freedom. So Subhash Chandra Bose has given his very strong slogan to the people. They provoke the people. He has given a powerful word that is give me blood and I will give you freedom. इन्होंने बोला कि आप मुझे खून दो, मैं आपको आज़ादी दूंगा. So Subhash Chandra Bose, popularly known as Netaji, gave his followers the battle cry of Jai Hind. The INA joined the Japanese army in its march on India from Burma. अब जो इंडियन नेशनल आर्मी थी इन्होंने जापानीज आर्मी के साथ मार्च किया and then they march on India from Burma. Okay, Second World War, Indian National Army too had to give up its plan. However, Indian National Army and its leader Netaji sets an inspiring example of patriotism before the people of India. तो ये जो इंडियन आर्मी थी, इंडियन नेशनल आर्मी थी, इन्होंने पीपल्स के आगे एक पैट्रियटिज्म की फीलिंग को दिखाया जिसकी वजह से और ज़्यादा इंडियन पीपल्स के अंदर एक पैट्रियटिज्म वाली फीलिंग बढ़ती ही गई. Then Indian nationalism after the Second World War. So after the Second World War, British realized that they cannot rule India for long. अब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये रियलाइज़ कर लिया कि वो ज़्यादा लंबे समय तक कंट्री में रूल नहीं कर सकते. Indians would no longer tolerate the humiliations of foreign rules. The British government therefore sent a cabinet mission to India in March 1946 to negotiate with the Indian leaders the terms for the transfer of power to India.
Now, government sends a cabinet mission to India. मार्च 1946 की बात है, एक कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ, नेगोटिएशन साइन हुआ, जिसमें इंडियन लीडर्स को उनकी पावर देने का निर्णय लिया गया. द कैबिनेट मिशन सजेस्टेड दैट इंडिया शुड बी अ फेडरेशन while giving a large amount of autonomy to the provinces and states. अब कैबिनेट मिशन में ये डिसाइड किया गया कि इंडिया के कुछ प्रिंसली स्टेट्स रहेंगे और कुछ एज यूजुअल स्टेट्स रहेंगे, बट कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग डिड नॉट एग्री टू सर्टन एस्पेक्ट्स ऑफ द प्रपोजल. अब जो मुस्लिम लीग थी इसमें मुस्लिम पीपल्स थे, ये इस पर्टिकुलर नेगोटिएशन के अगेंस्ट थे. ठीक है, दे वर नो ऑप्शन बट द पार्टीशंस ऑफ द कंट्री. ये सिर्फ एक ही ऑप्शन को समझ रहे थे, दैट इज द पार्टीशन. इनको सिर्फ पार्टीशन चाहिए था. द ब्रिटिश पॉलिसी ऑफ द डिवाइड एंड रूल हैड हेल्प इन क्रिएटिंग अ रिफ्ट बिटवीन द कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग. तो जो कांग्रेस पार्टी थी और जो मुस्लिम लीग थी, इनके बीच में डिवाइड एंड रूल वाली जो पॉलिसी थी ब्रिटिश की, वो एक खाई की तरह काम कर रहा था, रिफ्ट की तरह काम कर रहा था. सो 1940 मुस्लिम लीग passed a resolution demanding partition of the country and the creation of a state to be called Pakistan. तो मुस्लिम लीग के द्वारा जो रिसोल्यूशन किया गया, डिमांड की गई पार्टीशन के लिए, जिसको एटलाइज्ड फाइनलाइज किया, एक पाकिस्तान में उनको स्टेट प्रोवाइड कर दिया गया. So after the failure of the cabinet mission, large scale communal riots started in different parts of the country. अब जब ये कैबिनेट मिशंस के द्वारा कैबिनेट मिशन फेल हो गया, तो बहुत सारे जो पीपल्स थे वो कंट्री में रॉइट्स करने लगे, दंगे होने लगे. ठीक है, कम्युनल रॉइट्स होने लगे. ऑन 16th of August 1946, Muslim League launched the direct action day to get Pakistan by brutal force. अब 16 अगस्त 1946 में जो मुस्लिम लीग थी, इन्होंने डायरेक्ट एक्शन डे के तहत पाकिस्तान को गेट करने के लिए ब्रूटल फोर्स किया. So this was followed by Mahatma Gandhi and torched East Bengal and Bihar to check these rebels' rights. Okay, so Gandhi ji has observed that in many of the states rights were, and like tribal rights has seen. Okay, so this much is about the Indian nationalism after the Second World War. Now next, India wins freedom in 1947. So finally, Lord Mountbatten, the Viceroy of India, announced that India would become a free nation and a free state of Pakistan will be created along with a free India. So at last in 1947 जो लॉर्ड माउंटबेटन थे, इन्होंने, ये वाइसरॉय ऑफ इंडिया थे उस टाइम पर, इन्होंने अनाउंस किया कि इंडिया अब एकदम फ्री नेशन है एंड अ न्यू स्टेट हैज़ फॉर्म दैट वाज कॉल्ड पाकिस्तान. Okay, the nationalist leaders reluctantly agreed to the partition in order to bring to an end the tribal communal rights, eventually the sacrifices of generations. तो ये जो communal rights था, इसको ख़त्म करने के लिए ये एक सही निर्णय सबको फील हो रहा था, तो इस वजह से ये पार्टीशन किया गया. ठीक है, लेकिन इसमें बहुत सारी जो जनरेशन्स थी उन्होंने सेक्रीफाइस किया. On 15th of August 1947, India celebrated its first day of freedom, but the sense of joy was mixed with pain and sadness of partition. तो 15th of August 1947 में इंडिया ने अपना फर्स्ट फ्रीडम डे सेलिब्रेट किया, लेकिन जो एक पेन था, जो एक सैडनेस थी पार्टीशन की, वो भी बनी थी. The sacrifices of generations of partitions and Mathras had borne fruits. तो जो शहीदों ने अपने देश को आज़ाद करने में जो मेहनत करी थी और जो कई सालों से पीपल एक पर्टिकुलर अपने कंट्री में रह रहे थे, तो उन्होंने पार्टीशन को ऑब्जर्व किया, जो उनके लिए एक सैडनेस का वन ऑफ द सिंबल था. सो इन अ हिस्टोरिक एड्रेस टू द नेशन ऑन 14th of August 9th in year 1947, Nehru put into poetic words the feeling of the people of India when he said. तो 1947 की 14 अगस्त की नाइट को नेहरू जी ने स्पीच दी और उन्होंने लोगों की फीलिंग को उन्होंने बताया. लॉन्ग ईयर एगो वी मेड अ ट्राइस्ट विद डेंसिटी एंड नाउ द टाइम कम्स व्हेन वी शेल redeem our pledge not wholly or in a full measure.
बट वेरी सब्सिक्वेंटली, ठीक है। तो इन्होंने ये बोला कि काफ़ी समय के बाद हमें मौका मिला है कि हम अपने कंट्री को संभाल के रखें और जो भी हमने सेक्रीफाइसेस किए उसका हमें फ्रूट फल मिल रहा है। एट द स्ट्रोक ऑफ द मिडनाइट आवर व्हेन द वर्ल्ड स्लीप इंडिया विल अवेक टू लाइफ एंड फ्रीडम। तो इन्होंने ये बोला कि जब पूरा नाइट में पूरा वर्ल्ड सोया है, सिर्फ इंडिया ही ऐसा कंट्री है जो चाह रहा है कि नेक्स्ट वो नई लाइफ के लिए, नई फ्रीडम के लिए फिर से अवेक हो। सो दिस मच इज अबाउट दिस चैप्टर। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।